Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we are going to study the critical appreciation of lines from Ulysses, a beautiful poem written by Alfred Lord Tennyson. And the purpose of reading this poem is simply to help you understand what are the most important things that you have to keep in your mind while writing the critical appreciation of a poem. So, in the beginning, you can see that we have substance. So, whenever you start the critical appreciation of a poem, you have to start it with the substance. And substance means the central idea, the most important thing that the writer has tried to stress in the poem. And here in this poem, you can see the writer says that in this poem, Tennyson depicts the great hero of Greek mythology, Ulysses, who is rejuvenating his age stricken and worn out fellow mariners with his fervent and impassioned declamation. Declamation means कोई वलवला अंगेज खिताब या तकरीर वगैरह. So he is rejuvenating his age stricken and worn out fellow mariners. They are on a voyage and he is rejuvenating them. Rejuvenate means हौसला भरना, जिंदगी दोबारा पैदा करना किसी के अंदर. So they are age stricken. Age stricken means उम्र रसीदा. अब बहुत बड़ी उम्र के हैं, वो सारे बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो सारे वॉर्न आउट भी हैं. वॉर्न आउट का मतलब भी होता है उम्र रसीदा या बड़ी उम्र का. So he is rejuvenating them with his fervent and impatient declamation. Fervent means पुरजोश and impatient का मतलब भी पुरजोश. He reminds them of their great qualities, that they have always relished an adventurous life with great ideals to pursue. They have always relished कि उन्होंने हमेशा पसंद की है an adventurous life, एक जद्दोजहद से भरपूर जिंदगी, एडवेंचर से भरपूर जिंदगी, जिसमें हमेशा उनके सामने कोई ना कोई मुहिम रही, कोई ना कोई बड़ा मकसद रहा. परस्यू का मतलब फॉलो करना, किसी चीज का पीछा करना. तो उन्होंने हमेशा बड़े आइडियल्स का, बड़े मकासद का पीछा किया है, उनको हासिल करने की कोशिश की है. Even they accepted the challenges of gods and contented with them successfully. यू नो दैट यूलिसिस जो है वो एक ग्रीक हीरो था, और ग्रीक्स जो थे बहुत सारे देवी देवताओं पर यकीन रखते थे, लेकिन यूलिसिस एक ऐसा हीरो था जो कि इंसान होने के बावजूद बहुत से देवी देवताओं को चकमा देने में भी कामयाब हुआ, उनको शिकस्त देने में भी कामयाब हुआ, और जो मकसद वो हासिल करना चाहता था उनकी मुखालफत के बावजूद उसने वो मकसद हासिल किया. सो दैट इज वाई यूलिसिस उनको याद दिला रहा है कि दैट even they accepted the challenges of gods and contented with them successfully. content का मतलब मुकाबला करना, कि उन्होंने उनसे कामयाबी से मुकाबला किया. Such strong-willed and heroic-minded people should keep striving. Keep striving means कोशिश करते रहना. That such strong-willed, कि ऐसे मजबूत इरादे वाले लोगों को, जिनका जहन जो है हीरोज वाला जहन है, they should keep striving up to their last breath. उन्हें अपनी सांस के आखिरी हिस्से तक कोशिश करते रहना चाहिए. To achieve new glories and dazzling achievements, even though they die in such struggle. चाहे उनकी मौत ही क्यों ना हो जाए इस स्ट्रगल के दौरान. Though they are not as strong as they used to be in youth, their unshakable will and their heroic heart are their true weapons. So he is also reminding them, he is also cheering them up, he is also boosting their morale by saying that अगरचे वो इतने मजबूत नहीं रहे जितने कि पहले कभी हुआ करते थे, लेकिन उनका हीरोइक हार्ट और उनकी जो अनशेकेबल विल है, यानी कि उनका इरादा जो किसी भी चीज के सामने जो है लरसता नहीं है, ये उनका मजबूत इरादा और ये उनका हीरोइक हार्ट जो है वो उनके असल वेपन्स हैं, उनके असल हथियार हैं जिंदगी के तमाम मुश्किल मराहिल के दौरान. इन सच स्ट्रगल देयर लाइफ एंड डेथ बोथ बिकम ऑव इंस्पायरिंग एंड मीनिंगफुल. लिहाजा जिंदगी और मौत दोनों का मीनिंगफुल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इफ दे स्ट्रगल इन दिस वे इन देयर लाइफ, देन देयर डेथ एंड लाइफ, दे विल बोथ बिकम ऑ इंस्पायरिंग. ऑ इंस्पायरिंग मीन्स जिसे देखकर लोगों के अंदर इज्जत और एहतराम पैदा हो. तो लोगों के अंदर और इवन उनके बनाने वाले के दिल में भी जो है उनके लिए इज्जत और एहतराम पैदा होगा, अगर वो इस स्ट्रगल के साथ और इस मेहनत के साथ जो है वो जिंदगी को गुजारेंगे अपने आखिरी सांस तक. तो दिस इज द सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम स्टूडेंट्स. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्रिटिकल एप्रिसिएशन में होती है वो है जनाब पोएम की लैंग्वेज. तो यहां पर हम देखते हैं कि एवरी वर्ड ऑफ दिस वंडरफुल पोएम ब्रीथ्स द पैशन एंड हीरोइज्म ऑफ
यूलिसिस। ब्रीथ्स का मतलब है, यहाँ वैसे तो ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, लेकिन यहाँ पर ब्रीथ का मतलब है इजहार करना, कि हर लफ्ज जो है इस जबरदस्त पोएम का वो इजहार करता है यूलिसिस के पैशन का और इसके हीरोइज्म का। हीरोइज्म का मतलब भी होता है बड़े बड़े एडवेंचर्स करने का जज्बा, और पैशन का मतलब भी जो है जोश और जज्बा। बिसाइड्स बीइंग डिग्निफाइड एंड क्लासिकल, द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज फ्लुएंट एंड इजी टू कॉम्प्रीहेंड एज वेल। अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो इस पोएम की लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट है, बहुत ही ज़्यादा जो है यूं समझें कि इजी टू कॉम्प्रीहेंड है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझ में आना, तो इसको समझना इस पोएम की लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपसे जो है आम रोज़मर्रा की ज़ुबान के अंदर जो है वो गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन कमाल क्या है कि फ्लुएंट और जो है इजी टू कॉम्प्रीहेंड होने के साथ साथ जो है इसके अंदर एक क्लासिकल टच भी है, एक डिग्निटी भी है इस लैंग्वेज के अंदर, एक अजमत भी है। यानी कि आम होने के बावजूद जो है एक खासपन जो है इस पोएम की लैंग्वेज के अंदर हमें नजर आता है। कंस्ट्रक्शंस लाइक फ्रॉलिक वेलकम, फ्री फोरहेड, वर्क ऑफ नोबल नोट्स, नॉट अनबिकमिंग मैन, डीपली मूव अस। तो ये इस किस्म की कंस्ट्रक्शंस आपको इस पोएम के अंदर मिलेंगी कि जो कि आपको बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत ज्यादा फुल ऑफ मीनिंग है ये कंस्ट्रक्शंस। जैसे कि फ्री फोरहेड्स का मतलब हो गया कि ऐसा जहन या ऐसी सोच जिसके अंदर कोई फिक्र ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बड़ा टारगेट उसके सामने ना हो, तो ऐसा जहनी जो है वो फ्री फोरहेड होता है। लेकिन वो अपने मैरिनर्स को कहता है कि तुमने हमेशा फ्री फोरहेड्स को अपोज किया है और तुमने हमेशा जो है स्ट्रगल से भरपूर लाइफ को जो है तरजीह दी है आसान जिंदगी के मुकाबले में। वर्क ऑफ नोबल नोट्स का मतलब हो गया कि कोई ऐसा काम जिसके अंदर बड़ी ही बुलंदी हो, बड़ी ही अजमत हो। और नॉट अनबिकमिंग मैन के कोई ऐसा काम जो कि इंसानों की शान के से कमतर ना हो। अनबिकमिंग का मतलब होता है किसी चीज का जो है कमतर होना, शायान शान ना होना। तो यहां पर जो है वो कह रहा है कि you have always liked those works that are of noble notes and that are not unbecoming man, जो कि इंसानों के लिए unbecoming ना हो, तुमने हमेशा उन कामों को जो है करना पसंद किया है। तो these constructions actually move us, ये हमारे अंदर भी जो है वो क्वालिटी जो कि इस पोएम, वो जज्बा जो कि ये पोएम चाहती है कि इंसानों के अंदर पढ़ने से पैदा हो। तो ये वर्ड जो है वो जज्बा जो कि ये शायर चाहता है कि हमारे अंदर पैदा हो इस पोएम को पढ़ने से, वो यकीनन ये लफ्ज जो है वो पैदा करते हैं। Certainly, the diction of Tennyson is extraordinarily unique and impressive. Extraordinarily unique और impressive जो है एक इसका डिक्शन है टेनिसन का। और वाकई जब हम इस पोएम को बार बार पढ़ते हैं तो उसका डिक्शन जो है उतना ही ज़्यादा जो है हमारे सोच, हमारे दिलो दिमाग पर जो है वो अपना असर दिखाना शुरू करता है। So this is how you describe the language of the poem. आपने देखा कि हमने जब अपने लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया तो हमने बताया कि लैंग्वेज जो है वो आसान थी या मुश्किल थी, पोएम का पोएम का अमूमी मिजाज किस किस्म का था, और ये लैंग्वेज जो है वो कैसे उस मिजाज के बिल्कुल मुताबिक है, वो जो सब्जेक्ट उसने चूज किया है उसके बिल्कुल मुताबिक है, और इसका असर हमारे ऊपर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप जब एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं तो वो आती है जनाब इमेजरी। और इमेजरी जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि इमेजरी मींस क्रिएटिंग पिक्चर्स विद वर्ड्स। जरा सा आम डगर से हटकर जो है अपनी बात को लोगों के सामने पेश करना, ताकि आपकी बात जो है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाए, और ज्यादा जो है वो सुनने में लोगों को अच्छी लगे, और वो डिजायर्ड इम्पैक्ट जो कि आप अपनी बात से हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो। तो इसके लिए जो है शायर इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को देखते हैं तो ऑल द इमेजेस ऑफ दिस पोएम आर स्प्लेंडेड सिंबल्स। सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो सिंबल्स हैं। यूलिसिस इज द सिंबल ऑफ अनडिफीटेबल ह्यूमन स्पिरिट। और यूलिसिस जो है वो भी एक सिंबल ही है। और किस किस्म का सिंबल है कि वो एक ऐसी इंसानी रूह, एक ऐसे इंसानी जज्बे का सिंबल है जो कि अनडिफीटेबल है, जो कि अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक जो है लड़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, और अपनी क्वालिटीज को और अपनी ग्रेटनेस को जो है वो प्रूव करना चाहता है। दैट इज बेंट अपॉन अचीविंग सम न्यू ग्लोरीज, दैट इज बेंट अपॉन अचीविंग न्यू ग्लोरीज टिल डेथ। फ्री hearts and free foreheads symbolize a life devoid of any struggle। जैसा कि मैं ऊपर पहले इस हवाले से बयान कराया हूं कि फ्री हार्ट्स और फ्री फोरहेड्स का मतलब ही होता है कि ऐसे दिलो दिमाग जिनके पास कोई बड़ा मकसद ना हो और वो बस ऐशो आराम की जिंदगी को ही जो है जिंदगी का जो है असल मकसद समझते हो। तो ऐसे ये लफ्ज जो है ये सिंबलाइज करते हैं
एक ऐसी जिंदगी जो कि जिसके अंदर कोई स्ट्रगल ना हो, जिसके अंदर जो है कोई एलिमेंट, कोई अजमत का एलिमेंट ना हो। देयर इज एलिट्रेशन का मतलब होता है, यहां पर एलिट्रेशन की स्पेलिंग गलत होगी, LITERATION। एलिट्रेशन का मतलब होता है बाज पर्टिकुलर वर्ड्स का या साउंड्स का बार बार जो है किसी लाइन के अंदर आना। तो फ्री हार्ट्स और फ्री फोर हेड्स के अंदर जो है एफ का लफ्ज जो है देखिए बार बार आ रहा है, फ्री, फ्री और फोर। तो लिहाजा जो है देयर इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एलिट्रेशन इन दिस कंस्ट्रक्शन। और शायर जो है एलिट्रेशन जो है वो अक्सर यूज करते हैं ताकि पढ़ने में उनकी लैंग्वेज जो है लोगों को अच्छी लगे, उसके अंदर एक रिदम और एक म्यूजिक जो है उनको उसके अंदर महसूस हो। आइडियाज ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ आर पर्सनिफाइड। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ओल्ड एज और डेथ को जो है उसने ऐसे पेश किया है इस पोएम के अंदर जैसे कि वो इंसान हो। और जब ऐसे आइडियाज को जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, आप उनको ऐसे पेश करें कि जैसे कि वो जीते जागते इंसान हो और वो इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आपने उनको पर्सनिफाई कर दिया होता है। लिहाजा दीज आइडियाज आर पर्सनिफाइड इन दिस पोएम। तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी एक इमेजरी ही की काइंड है। द स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ वेन्ड डे एंड अप्रोचिंग नाइट ग्रेटली इंप्रेस आवर सेंसेस। अब देखें कि वेन डे का मतलब होता है, यहां पर अगरचे उस पोयम के पस मंजर में जो है एक ढलता हुआ दिन इससे मुराद है, एक ऐसा दिन जो कि अब गुजर रहा है। और अप्रोचिंग नाइट का मतलब जो है रात जो कि आ रही है। लेकिन अगर हम सिंबॉलिकली देखें तो इसका मतलब ये भी है कि जिंदगी का दिन जो है अब खत्म हो रहा है और शायद मौत की रात जो है वो अपनी नींद के साथ जो है वो हमेशा के लिए हमारी तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये भी यानी कि ऐसे इमेजेस हैं, ये ऐसी यानी कि पिक्चर्स हैं जो कि हमारे सेंसेस के ऊपर बहुत गहरा असर डालती हैं। कि कुछ मैरिनर्स हैं जो कि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन जो है वो कुछ नई मंजिलों और कुछ नए एडवेंचर्स की तलाश में जो है किसी अनदेखी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं शाम के वक्त। और जबकि रात जो है वो आ रही है और सितारे जो हैं वो दूर कहीं चमकना शुरू हो गए हैं, और वो सितारे जो हैं उन्होंने उनको अपनी मंजिल बना लिया है कि हमने इन सितारों तक पहुंचना है जो कि दूर कहीं समुद्र के अंदर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। Certainly, the symbolic images of this poem inspire us to struggle tirelessly to materialize our dreams. लिहाजा ये symbols जो हैं ये हमें भी इंस्पायर करते हैं कि हमने मेहनत करनी है टायरलेसली, अनथक अंदाज में, कि हम अपने मकासद को जिंदगी में हासिल कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसी पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर होता है वो है जनाब साउंड इफेक्ट्स का। और साउंड इफेक्ट से मुराद यही है कि क्योंकि पोयम का बेसिक मकसद ये है कि सुनने में वो आपको कैसी लगती है। तो यहाँ पर भी जो है जब हम इस पोयम को लाउडली पढ़ते हैं, और हर पोयम को इसीलिए शायर लिखता है कि उसे पढ़ने वाला जो है उसे ज़रा आवाज़ के साथ पढ़े, ज़रा लहन के साथ पढ़े, रेसिटेशन के साथ पढ़े, और पढ़ने में उसको जो है मज़ा आए, और उसके लफ्ज़ और वो जो लय और ताल है उस लफ्ज़ों के अंदर, उससे जो है उसके ऊपर एक उसका असर कायम हो, उस मैसेज का जो कि उसको कन्वे करना चाहता है। तो यहाँ पर जो है जो साउंड इफेक्ट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो द रेट्रिकल नेचर ऑफ दिस पोएम मेक्स अस रिसाइट इट लाउडली एंड पैशनेटली। जो रेट्रिकल नेचर है इस पोएम की, जैसे कि वो किसी अपने अपने मैरिनर्स को जो है वो खिताब कर रहा है कि माय मैरिनर्स, souls that have wrought and thought and fought with me, you and I are old। तो एक इस अंदाज में जो है वो एक खिताबाना अंदाज में जो है वो अपने मैरिनर्स से जो है वो महवे गुफ्तगू है। तो कहता है कि देयर इज अ पॉज आफ्टर माई मैरिनर्स। जब माई मैरिनर्स कहता है तो उसके बाद एक छोटा सा पॉज हमें देना पड़ता है, माई मैरिनर्स। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को जो है वो कोई बड़ा काम करने के लिए जो है एक हौसला दे रहा है और जज्बा उनके अंदर पैदा कर रहा है। तो दैट एट वंस ग्रैब अवर अटेंशन। और ये जो एक अंदाज है इन लाइंस का, वो हमारी अटेंशन एकदम से जो है वो ग्रैब करता है, अपनी तरफ खींचता है, पकड़ लेता है। अगेन वी फील लाइक पॉजिंग आफ्टर सोल दैट इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ लेटर वर्ड्स। और उसके बाद जो है जब हम आगे बढ़ते हैं तो सोल वर्ड के ऊपर आकर जो हमें दोबारा रुकना पड़ता है कि माय मैरिनर्स, souls that have wrought and thought and fought with me। तो लिहाजा यहां पर भी जो है एक रेट्रिकल इफेक्ट जो है पोएम के अंदर आ जाता है। ऑलमोस्ट एवरी लाइन बिगिंस विद एन एक्सेंटेड सिलेबल। और ये भी एक नोटेबल बात है कि हर लाइन जो है इस पोएम की एक्सेंटेड सिलेबल से शुरू होती है। एक्सेंटेड सिलेबल वो सिलेबल होता है जहां पर आपको थोड़ा सा जोर लगाकर जो है वो लफ्ज जो है वो अदा करना पड़ता है। और एंड हेल्प्स अस टू फील द हीरोइक पैशन एंड अनडॉन्टेबल स्पिरिट ऑफ यूलिसिस के। यूलिसिस की जो अनडॉन्टेबल स्पिरिट है उसको ये शो करती है।
Even after completing this poem, we feel ourselves under its spell. Spell का मतलब है यहाँ पर असर। तो कंप्लीट करने के बाद भी पोएम को हम इसके स्पेल में रहते हैं, और यही जो है एक अच्छी पावरफुल राइटिंग का तकाजा होता है कि उसको जब आप पढ़ लें तो काफ़ी देर तक उसका असर आपके ऊपर रहे, आप महसूस करें कि यू आर अंडर द चार्म एंड स्पेल ऑफ दैट ब्यूटीफुल थिंग। और आखिर में जनाब, मोस्ट स्ट्राइकिंग लाइंस, आपने हमेशा जो है पोएम्स की मोस्ट स्ट्राइकिंग लाइंस को जो है जरूर डिस्कस करना है। द लास्ट टू लाइंस ऑफ दिस इंस्पायरिंग ब्लैंक वर्स आर द जिस्ट ऑफ दिस पोएम। और ये पोएम जो है कौन से शायरी लिखने के अंदाज में लिखी गई, कौन सा रूल ऑफ प्रोसोडी। रूल ऑफ प्रोसोडी का मतलब होता है नज्म या शेर लिखने के तरीके। तो कौन सा शेर लिखने का तरीका इख्तियार किया गया है इस पोएम को लिखने में? ब्लैंक वर्स। तो लिहाजा जो है the last two lines of this inspired blank verse are the gist of this poem. Gist का मतलब क्या है? खुलासा। They strongly stimulate us to work tirelessly with strong self-belief and unshakable determination. और ये हमें स्टिमुलेट करते हैं, एक जोश और जज्बा और तहरीक हमारे अंदर पैदा करते हैं कि हम टायरलेसली काम करें और अपने अपने गोल्स को, अपने अपने मकासद को अचीव करने के लिए जो है अनशेकेबल डिटर्मिनेशन का मुजाहरा करें। Made weak by time and fate but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield. तो ये जो लास्ट दो वर्ड्स हैं कि अगरचे हम कमजोर हो गए हैं वक्त और किस्मत की वजह से, लेकिन हमारे इरादे मजबूत हैं, और हमने जो हमारी जिंदगी का एक ही काम है कि हमने स्ट्राइव करना है, मुसलसल जद्दोजहद करनी है, कुछ ना कुछ जिंदगी में नया मकसद हासिल करने की तगदो करनी है। सीख का मतलब ढूंढना, फाइंड का मतलब भी ढूंढना, एंड नॉट टू यील्ड, यील्ड का मतलब हार मानना, लेकिन कहता है कि हमने कभी भी हार नहीं माननी है। Undoubtedly, these impressive lines hold the secret of success in all difficult moments of life. जिंदगी की तमाम डिफिकल्ट मोमेंट्स में जो है ये जो है एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस रखती हैं कि you have to be strong in will, you have to strive to seek and find and not to yield throughout your life. That should be the real motto of your life as well. So hopefully students, you must have enjoyed the critical appreciation of this poem. और यकीनन ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको ये बताती हैं कि आपने जब एक पोएम को पढ़ना है तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को सामने रखना है। आपने उसका सब्सटेंस देखना है, लैंग्वेज देखनी है, इमेजरी देखनी है, साउंड इफेक्ट्स पर उसके बात करनी है आपने, और मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट पावरफुल लाइंस जो कि आपको उस पोएम में लगती हैं और क्यों लगती हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करना है। और इतना ही कर लें तो आप बहुत है, बहुत ज़्यादा है। थैंक यू।